Naji, my colleague from Technical Support Group of MHRD, Alka Misra, other colleagues from NUPA, and dear participating officers from all the states from the northeastern region of our country. I join once again and welcome you in this very important workshop, which is 22nd regional workshop for UDICE data analysis, sharing and dissemination of district MIS coordinators. To me, it is very important topic. We are very good so far as data collection is concerned. But unfortunately, data utilization is not at all satisfactory across the country. I will come to this aspect a bit later. But before, let us discuss Unified DICE 2014-15. In the last 2.5 months, I have been moving around the country, and this is perhaps 15 states which I have visited in the recent past. I am very happy to report with you, I am very happy to share with you that Unified DICE 2014-15 is going on smoothly across the country. It's very smooth. However, different states are at different stages of Unified DICE 2014-15. Some states have already collected the data, punched the data verification is over, consistency checking is going on or it is over, sharing is also going on, printing of the school report cards based on 2014-15 data has also been done and given back to school for verification. In some other states, the entire process of 2014-15 has already been done, over. They are now giving the final touches so as to submit the data as early as possible. Because of your active participation across the country, DICE is at this stage now. We have achieved a lot. We still have to achieve a lot more. We are aware about the problems in our data with particular reference to coverage, quality, consistency, sharing, utilization and dissemination of data. I will touch upon many of these points in my presentation. But before that, I would share with you two important decisions which have been undertaken which are taken at the national level by the Ministry of Human Resource Development. It has been decided now that henceforth DICE would be the only source of educational statistics so far as the school education in our country is concerned. Which means that all the parallel collection of information system will be discontinued. This has already been happened. This otherwise means that DICE has acquired the status of official statistics. This also means that all the publications concerning school education statistics of MHRD henceforth would be based only on Unified DICE data supplied by you only. This is not a mean achievement. We started DICE in 2094-95 and in the year 2013-14 we could able to acquire the status of school official statistics
is not a mean achievement. And the credit of this goes to you, friends like you, those who are sitting here and those who are not sitting here today. We received data none less than 15,18,160 schools imparting school education across 662 districts spread over 36 states and union territories. We could able to receive data from about 7,000 blocks spread over about 70,000 clusters of our country. Because of your active participation, we could able to establish MIS unit both at the state as well as the district levels. And in most part of our country now we also have MIS unit even at the block level. This is not a mean achievement. So that particular decision was recently taken at the national level. The second important decision which is now being taken is that henceforth if NCERT conducts All India School Education Survey, they will confine to only those variables which are not available in DICE. Or in other words, they will collect information only on those variables which are not school-based. Those variables are like number of habitations having a schooling facility within 1 kilometer or within 3 kilometers in case of primary and upper primary level of education. Which means that DICE will become the only source of information so far as the school level of education in our country is concerned, and the credit to this great achievement goes to friends like you only. You have worked very hard in the past. Because of your hard work, we have reached to this level. Because of your hard work, you are the recipient of 4 national awards: E-India Award, E-Governance Award, Manthan South Asia Award, Indian Express Innovation Award. The real recipient of all these awards are none other than all my officers, those who are sitting here and those who are working at the school level as a respondent, cluster level, block level, district level, state level. The real winner of all these awards are in fact my officers, those who are involved in unified DICE. Because of these important decisions, more responsibility, we should now feel more responsible than in the past year. DICE is the only source of information now. As of now, it is going on fine. But unless, if there is some problem, some other problem is there, that we will be at the receiving end. So there is no shortcut but to further improve the quality, coverage, consistency, sharing, utilization, dissemination of our data. And frankly speaking, despite all our achievements, there are still a number of problems with regard to coverage, consistency and quality and reliability of our data. Since we are discussing all these issues in-house, there is no hesitation in admitting that despite all our achievements, there are still many areas of concern. बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे एरियाज ऑफ कंसर्न हैं. उन एरियाज ऑफ कंसर्न के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश, I will highlight some of these issues and then we'll also discuss some points with particular reference to analysis of the data, which is the need of the hour. डेटा तो भैया बहुत अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा हो गया है और भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन भैया एनालिसिस कौन कर रहा है यार? ये तो देखो स्टेट लेवल पे कितने ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं जो सारे इंडिकेटर्स को समझते हो, जीआर और एनईआर में फर्क समझते हो, ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, ट्रांजिशन रेट, कंप्लीशन रेट, ग्रेजुएशन रेट, इनमें फर्क समझते हो.
ड्रॉप आउट प्रमोशन रिपीटेशन रेट को कंप्यूट कर पाते हो, कौन सा डेटा चाहिए उसको समझते हैं, डेटा के लिमिटेशंस क्या है उसको समझते हैं, इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको, सबको इंडिकेटर्स को कंप्यूट करना आता है। अगर आप ईमानदारी से देखें, आपको मेरे से ज्यादा पता है, हर राज्य के अंदर केवल 1 या 2 बंदे ही हैं जो ये सब कार्य समझते हैं और कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही हाल है, स्टेट लेवल पे यही हाल है। तो अब समय आ गया है, वी शुड गिव मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन टू डेटा एनालिसिस। वो थोड़ा बाद में देखेंगे। मैं बात कर रहा था, आई वाज जस्ट रेफरिंग टू द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आवर डेटा। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी डेटा में अभी भी कमियां है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। सारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट हमारा सॉफ्टवेयर से प्रिंट होता है। 95% इंफॉर्मेशन तो प्रिंट होके ही आती है। उसमें भरने के लिए तो केवल एनरोलमेंट बाय एज, एनरोलमेंट बाय कैटेगरी एंड एनरोलमेंट बाय वीडियो ऑफ इंस्ट्रक्शन यही है। और टीचर का डेटा को अच्छी तरह से ठोक बजा के देखना है कि भैया वो ठीक है या नहीं है। कुछ चेंज हो गया, टीचर का ट्रांसफर हो गया है, प्रमोशन हो गया है, रिटायर हो गया है, तो उसको भी हमें लाल स्याही से गोला कर देना है। इतना आपको सबको पता है। दोस्तों, इन बिगर स्कूल्स जहां पर 1000 से भी ज्यादा एनरोलमेंट है, जहां पर 50, 60, 70, 80 टीचर्स भी है, ऐसी सरकारी स्कूल भी है हमारी, ऐसे प्राइवेट स्कूल भी है। उन स्कूल्स में ये प्रपत्र जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट है उसको हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो खुद नहीं भर पाते हैं। ये पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए। तो ये सारी जिम्मेवारी दूसरे हेड टीचर को दे दी जाती है। और दूसरे हेड टीचर और मिड डे मील वाले और बाकी स्कूल में जो बाकी अलग अलग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाले मिलके इस सबको भरते हैं। और जब ये कार्य पूरा हो जाता है, देन इट इज सबमिटेड बैक टू द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर। और मेरी ये जानकारी है, गलत हो तो आप मुझे बताना। हेडमास्टर साहब और प्रिंसिपल साहब जैसे ही वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट भर के आता है हेड टीचर द्वारा या ऑथराइज्ड पर्सन जो उन्होंने जिसको कहा है, फौरन से साइन करके टप्पा मार के और ऊपर दे देते हैं कि भैया मेरी जिम्मेवारी तो खत्म हुई, तुम दे दो सीआरसी को। चेक नहीं करते हैं, हेडमास्टर साहब भरे हुए फॉर्म को चेक नहीं करते हैं। अगर हम केवल इतना ही कर दें कि जब वो फॉर्म हमारे पास में भर के आए तो पलट के तो देख लें कि हेड टीचर क्या भर के लेके आए हैं, तो इससे भी एक मैसेज जाएगा हमारे जो हेड टीचर और बाकी के जिम्मेवार लोग हैं कि भैया ये हेडमास्टर साहब तो मैं जो भर के लाया हूं उसको भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आज तक तो किसी ने नहीं देखा। तो एक मैसेज जाएगा कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट को सही सही भरना है, पूरा पूरा भरना है, रिकॉर्ड को देख के भरना है। अभी क्या हो रहा है आपको पता है? सारी इंफॉर्मेशन हेड टीचर या हेडमास्टर साहब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में भर देते हैं। कोई भी किसी भी तरह का रिकॉर्ड है वो उसको रेफर नहीं करते। दे डू नॉट रेफर एनी रिकॉर्ड। 3 कमरे हैं, 2 बच्चे हैं, एक के अंदर माइनर रिपेयर चाहिए, इतने टीचर है, स्कूल इतने स्थापित हुआ था, ये हुआ था, ये सब कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भर देते हैं बगैर किसी भी रिकॉर्ड को देखे हुए, रजिस्टर को देखे हुए। जबकि स्कूल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ज्यादातर रिकॉर्ड कॉमन है, जैसे अटेंडेंस रेट, अटेंडेंस का क्लास रजिस्टर, एनरोलमेंट रजिस्टर, मिड डे मील का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और भी बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो स्कूल में मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स तो कॉमन हैं और कुछ रिकॉर्ड्स कॉमन नहीं है। तो अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में कोर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, ताकि अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे आपने 14-15 का डेटा यू हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। जब वो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग वाली एजेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगी तो उसको चेक करने के लिए स्कूल में कुछ नहीं है, केवल डेटा कैप्चर फॉर्मेट जो भरा हुआ है। और ब्यूटीफुली आवर हेडमास्टर्स दे यूज्ड टू कीप इन ए फाइल।
बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छी तरह से हर स्कूल के अंदर भरे हुए डेटा कैप्चर फॉर्मेट मिलेंगे और वही एक रिकॉर्ड है दोस्तों। वो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड तो है अटेंडेंस रजिस्टर, क्लास रजिस्टर, एनरोलमेंट रजिस्टर, मिड डे मील का रजिस्टर, इनकम एक्सपेंडिचर का रजिस्टर और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये कोशिश अब हमें करनी है कि हर स्कूल के अंदर कोर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। एट ड्यूपा वी हैव डेवलप्ड ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स व्हिच आर अवेलेबल एट dice.in and we have already requested all the state project directors to kindly explore the possibility of maintaining the core set of records. ये भी हमारी कमी है क्योंकि हम रिकॉर्ड को देखते हुए सारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं भरते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम सब जानते हैं हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट करीब करीब पूरा ही प्रिंटेड है। आप लोगों ने इस बार ये जरूर अपने ट्रेनिंग में यू माइट हैव एम्फसाइज्ड दैट वी हैव टू चेक द प्रिंटेड डेटा कैप्चर फॉर्मेट आल्सो। हमारी प्रवृत्ति, हमारी मेंटेलिटी जनरली ये होती है जब किसी भी फॉर्म को भरते हैं हम, व्हेनेवर वी फिल अप ए पर्टिकुलर फॉर्म, केवल हम यही देखते हैं कि खाली जगह कहां है उसको भर दें। भरी हुई जगह को, भरी हुई इंफॉर्मेशन को, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को कोई नहीं पढ़ता है। सही है ना ये बात? तो हमने 2014-15 में एक मैसेज पूरे भारत में दिया कि आप भरे हुए डेटा कैप्चर फॉर्मेट को भी चेक कराएं और जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी है, गलत सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप लाल स्याही से सर्कल कर दें ताकि जब वो डेटा एंट्री होने के लिए आएगा तो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको जल्दी से जल्दी 1 सेकंड के अंदर उसको ठीक कर देंगे। मुझे ये कहते हुए, बहुत ही आपके साथ में शेयर करते हुए, आई एम हैप्पी दैट अक्रॉस द इंडिया इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स व्हिच वी हैव विजिटेड दिस हैज बीन वेरी रिगरसली फॉलोड इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दूसरी बात ये होगी, अभी मैंने कहा कि ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन वो ही वेरिएबल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा जो डाइस में नहीं है। इसको देखते हुए 2014-15 में वी हैव एडेड 10 वेरिएबल्स which are taken from the All India School Education Survey and we are quite confident that वो वेरिएबल्स आपको पता होंगे। एक वेरिएबल तो हमने डाला था, whether the school teacher was imparted computer training to teach through computers in the school। रिलीजियस स्कूल है क्या ये? स्कूल में प्रिंटर्स है क्या? इंटरनेट है क्या? मोबाइल नंबर भी डाल दिया है टीचर की कॉलम में, लास्ट कॉलम आपको पता होगा टीचर की टेबल में, पता है आपको? डाला आप लोगों ने? तो ये 10 वेरिएबल हमें अभी भी आप लोगों ने डेटा सबमिट नहीं किया है, लेकिन ये अच्छी तरह से चेक कर लें, ये नए वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन भर के पूरी सही करेक्टली हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आ गई है या नहीं आई है, ये इसको देखना। इसके अलावा पिछले साल का जब हमने डेटा को एनालाइज किया उसमें तो भैया बहुत गड़बड़ है यार, बहुत कमियां हैं, अभी बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इतना इंप्रूव करने के बाद भी अभी हमारे डेटा में कुछ कमियां रह गई है और उसको अगर कोई ठीक करवा सकता है तो मेरे साथी, डिस्ट्रिक्ट के दोस्त लोग, क्लस्टर और ब्लॉक पे काम करने वाले हमारे MIS के लोग, वो ही इसको ठीक करवा सकते हैं। अन्यथा और कोई भी मीडिया या साधन हमारे पास में नहीं है। वी कैन फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर डेटा। छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं थोड़े से। पिछले वर्ष जब हम डेटा का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा एक ही राज्य के, एक ही स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ स्कूल्स ने कहा कि उसका स्कूल पिछली वर्ष 220 दिन तक फंक्शन किया चला। उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ब्लॉक में कह रहा है कि 99 डेज चला। ये संभव है क्या? अगर ये सही है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, उसको बिल्कुल बदलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको 2 बार 3 बार चेक जरूर करवा लें कि भैया एक ही ब्लॉक के अंदर हाउ इट इज पॉसिबल दैट ए फ्यू स्कूल्स function for 220 or 25 days
on the other hand, a few schools function only for 2-digit number of days. हो सकता है नया स्कूल हो, बाद में स्टार्ट हुआ हो, फंक्शन पूरा 90 दिन तक चला हो, 99 डेज तक चला हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, पिछले वर्ष जब हमने एनालिसिस किया तो ये देखा बहुत से स्कूल्स के अंदर केवल 2 डिजिट में यानी कि 99 डेज तक ही है। और तब ये एवरेज नंबर ऑफ फंक्शनल स्कूल डेज को आप कंप्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इंडिकेटर है वो एब्सर्ड हो जाते हैं बहुत सी जगह पे। तो हम केवल उसी को कंसीडर करते हैं जिस स्कूल ने कम से कम 3 डिजिट के अंदर नंबर ऑफ डेज स्कूल को दिया है। ये एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है, हमारे डेटा के अंदर है। दूसरी छोटी सी बात, बहुत से स्कूल्स ने पिछले बार ये बताया कि उनकी स्कूल्स में टीचर 10 घंटे तक पढ़ाता है। 24 घंटे में से अगर 10 घंटे तक टीचर पढ़ाता है तो अभी तक तो हमारा भला हो गया होता। ये अगर सही है तो इसको रहने दें, इसको चेंज नहीं करें, लेकिन इसको अच्छी तरह से ठोक बजा के चेक करवा लें कि टीचर 10 घंटे तक स्कूल में पढ़ाते हैं क्या, उस स्कूल में, उस क्लस्टर में। ये जरूर चेक करवा लें अगर अभी नहीं करवाया है तो। और तो और बहुत से स्कूल्स ने यह भी बताया है कि उनके स्कूल्स में बच्चे भी 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। 24 घंटे में से अगर पढ़ाई लिखाई का काम 10 घंटे तक स्कूल में बच्चे कर रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन हम आपसे केवल इतना निवेदन कर रहे हैं, इन सबको चेक करवा लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सबको चेंज कर दें, चेंज करने की बात नहीं है। इस डेटा को, भरे हुए फॉर्म को, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वही व्यक्ति है जिसने इस फॉर्म को भरा है, जो हमारा रेस्पोंडेंट है। सीआरसी लेवल, बीआरसी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कोई भी उसको चेंज करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं। जो भरा है जिसने फॉर्म, केवल वो ही चेक करेगा। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बात मैं और छोटी सी और एक आपको बता दूं, अभी आप टीचर का डेटा देते हैं, बहुत से स्कूल ने ये बताया है कि उनके टीचर है वो 18 साल से भी छोटे हैं। The date of birth which he has given, they have given school, the age of teacher comes to below 18। अगर ये सही है तो उसको रहने दें, ठीक नहीं करें, लेकिन चेक जरूर करवा लें कि भैया आपके स्टेट में 18 साल से छोटा, 18 ईयर, a young teacher below 18 years can be appointed, is it possible? इसको भी ठीक करवा लें। और दूसरी तरफ यह भी ठीक करवा लें कि आपके स्टेट में और कुछ स्कूल में टीचर 99 ईयर्स का भी हो सकता है क्या, ऐसा डेटा भी आपने दिया है। डबल डिजिट में 99 तक ले गए आप, क्योंकि प्रोविजन 3 डिजिट का दिए थे तो आप तो 100 भी पार कर देते। इसको भी चेक जरूर करवा लें दोस्तों। एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम, हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोलमेंट हमारा आर्ट्स में कितना है, साइंस में कितना है, कॉमर्स में कितना है, बहुत से स्कूल ने ये डेटा ही नहीं दिया। अगर इस तरह के आंकड़े अगर हम देते रहे, कितना भी हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बन जाएं, कितना भी इंप्रूव कर गए हों, लेकिन दोस्तों किसी भी हमें कोई भी हमारी डेटा को विश्वसनीय नहीं मानेगा अगर ये छोटी छोटी कमियां हमारे डेटा के अंदर अगर रह गई है। मैंने कहा आपको 95% डेटा कैप्चर फॉर्मेट तो प्रिंटेड है, उसमें क्या चेक करना है। बहुत सी जगह पे हमें ये भी कहा गया, क्या साहब मेहता साहब ये आपने एक्सरसाइज बना दी, भरने के लिए तो कुछ है नहीं, इसमें केवल एनरोलमेंट भरना पड़ता है। अब अगली बार हमें पूरा खाली दे, पूरा डीसीएफ खाली दे दें हमें, तब हमारा इंटरेस्ट जगेगा, लोग भी इंटरेस्ट लेंगे। अभी तो सब कुछ भरा हुआ है, उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए, बट ये सोच भी हमारे दोस्तों में है कि सारा फॉर्म तो भरा हुआ है, एनरोलमेंट ही उसमें भरा जाना है और टीचर की जो जानकारी है उसको हमें अच्छी तरह से चेक करवाना है। ये जिम्मेवारी हमारी है। जब हम एनरोलमेंट की बात करते हैं तो एनरोलमेंट 3 तरह का है हमारे पास। एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय वीडियो इंस्ट्रक्शन और एनरोलमेंट बाय एज, जिसको हम एज एंड ग्रेड मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इन तीनों को चेक कर लें दोस्तों, वापस जाके कर लेना, ये मेरा चैलेंज है। बहुत सारे स्कूल के अंदर ये तीनों नहीं मिलते हैं। अगर 100 बच्चे हैं, टोटल बच्चे 100 हैं, उसको बाय वीडियो इंस्ट्रक्शन कर लो या बाय एज कर लो तो 100 ही रहना चाहिए।
SC ST OBC जनरल, इन सबको जोड़ लो तो ये तो 100 ही रहना चाहिए भैया, ये 110 120 90 नहीं हो सकता है, बट ये कमाल भी हमने करके दिखाया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कमी आई है, हमारा डेटा इंप्रूव हो गया है, अब कम जगह पे कम स्कूल के अंदर ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन बाकी बची हुई स्कूल के अंदर अगर कोई ठीक करवा सकता है तो मेरे CRC कोऑर्डिनेटर जो सबसे नीचे लेवल पे बैठे हैं, 20 से 25 स्कूल उनके पास में, केवल वही चला सकते हैं, वही करवा सकते हैं, क्योंकि CRC इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज क्वालिटी एंड कवरेज ऑफ यूनिफाइड डाइस डेटा इज कंसर्न। CRC को टिप्स के ऊपर पता है, ये सब उसको पता है कि उसके अंडर में कितनी CRC है, कितने स्कूल में पानी है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, कितने टीचर है, ट्रेंड है या नहीं है, कितना एनरोलमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन टिप्स के ऊपर CRC को है। और इन सब चीजों को अगर कोई ठीक करवा सकता है तो केवल CRC करवा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने अपने ट्रेनिंग के अंदर CRC को जरूर ऑथराइज्ड और अकाउंटेबल बनाया होगा कि भैया ये तुम्हारी गारंटी है कि हर स्कूल तक पहुंचना चाहिए फॉर्म, डेटा कैप्चर फॉर्मेट वापस भर के आना चाहिए, और आपको 100% बेसिस के ऊपर यू हैव टू चेक द फील्ड इन डेटा कैप्चर फॉर्मेट, दैट इज द ओनली वे वी कैन फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी एंड कवरेज ऑफ आवर डेटा। ये दूसरा पॉइंट था। अब ये भी इतना कर ले, वापस जाके ये भी अगर कर सकते हैं अभी भी तो इतना कर लें कि ग्रेड 3 का एनरोलमेंट दिस ईयर और ग्रेड 2 का एनरोलमेंट प्रीवियस ईयर, इन दोनों को मिला ले भैया। ग्रेड 3 एनरोलमेंट दिस ईयर इज 120, ग्रेड 2 एनरोलमेंट इन द प्रीवियस ईयर वाज ओनली 90। तो 90 से 120 कैसे हो गया? ये कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं उसको जाके एकदम बदल देना, 90 कर देना, नहीं भैया, ऐसा नहीं काम करना हमें। बट वी शुड नो कि भैया ये 30 एडिशनल बच्चे कहां से आए, कौन हैं? पिछले साल तो क्लास 1 में 100 बच्चा था, इस बार क्लास 2 के अंदर 125 हो गया। these 25 एडिशनल चिल्ड्रन आर। अगर ऐसा है तो हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और अगर ऐसा डेटा है तो सारे आपके ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटेशन रेट, ट्रांजिशन रेट, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, दे ऑल बिकम यूजलेस। और मुझे कहते हुए ये बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से बहुत सारे राज्यों के अंदर ड्रॉप आउट रेट अगर आप हमारे पब्लिकेशंस देखेंगे तो वो सब डैश 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी अगर ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट और रिपीटेशन रेट, इन तीनों को मिला लें तो वो 100 से भी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने बच्चे थे उनसे ज्यादा हमने प्रमोट कर दिए या रिपीट करवा दिए या ड्रॉप आउट करवा दिए। दैट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसको जाके जरूर चेक करवा लें, पिछले साल का एनरोलमेंट और इस साल का एनरोलमेंट, ग्रेड टू ग्रेड, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, उसको जरूर चेक करवा लें। अन्यथा हमारी डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इन छोटी छोटे रीजन्स वजह से हमारे डेटा की क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह लगने अब बहुत कम हो गए हैं, और इसका अगर श्रेय इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेडिट अगर जाता है तो दोस्तों आपको जाता है और किसी को नहीं जाता है। आप भी इसको ठीक करवा सकते हो, मैं नहीं करवा सकता, अलका भी कुछ नहीं कर सकती, मैडम भी कुछ नहीं कर सकती। जो हमारे CRC और BRC के बंदे हैं वो थोड़ा चेकिंग करके इस सबको ठीक करवा सकते हैं। मैडम ने ये मुद्दा अभी उठाया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग होने चाहिए, भरने वाला अभी भी सही नहीं भर रहा है। बिल्कुल वाजिब, बहुत ही वैलिड उनका एरिया ये कंसर्न है, अभी भी भरने वाले। अगर ये ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हो रहा है जैसा मैंने कहा है, कुछ जगह पे अभी भी हो रहा है, उसकी वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैडम ने यह भी बताया कि डेटा को पब्लिक डोमेन में अगर डाल दें तो हमारी डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मैडम, हम आपको ये बताएं कि 2005-6 से लगाकर 2013-14 का पूरा डाइस का आंकड़ा dice.in और स्कूल रिपोर्टकास्ट.in के ऊपर उपलब्ध है। सारे रिपोर्ट कार्ड 15 लाख स्कूलों के पिछले 9 साल के यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल दी
तो इससे भी हमें बहुत मदद मिल रही है डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। कैसे मिल रही है, 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म अभी भी कैसे भरा जा रहा है और इसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसको अभी 1 महीने पहले ही एक मेल आया मेरे पास में बेंगलोर से, और उसके बाद में टेलीफोन पे भी बात हो गई। साहब बहुत ज्यादा नाराज थे और धमकी दी हमें, मुझे तो फॉरन इन 2 स्कूल कार्ड आईडी दिया उन्होंने, स्कूल का 11 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड, इन 2 स्कूल को जल्दी से आप हटाइए, अन्यथा मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, सू करूंगा न्यूपा को और अरुण मेहता को। कहा क्या हो गया यार, तुम मुझे बता दो क्या करें। तो उन्होंने बताया भैया आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं है। मैं तो आज इस स्कूल में तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आज सुबह स्कूल जाके आया हूँ, और तो और 800 रुपए पर मंथ मैं कंप्यूटर की फीस दे रहा हूँ और आप कह रहे हो कंप्यूटर नहीं है, हटाओ इसको जल्दी से आप। फिर उसने एक बात ये भी कही, मे बी योर रिपोर्ट कार्ड इज करेक्ट, क्योंकि आप कह रहे हो कि देयर इज नो हेडमास्टर इन द स्कूल। यस, देयर इज हेडमिस्ट्रेस इन द स्कूल। मैं आपसे ये सवाल इसलिए सब खड़ी कर रहा हूँ ताकि आप सोचें कि सब कुछ सही नहीं है। अभी ये इन हाउस डिस्कशन है, इसलिए मैं बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भरने वाले हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब अभी भी सही ढंग से नहीं भरा जा रहा है। बहुत सी जगह के ऊपर ट्रेनिंग में जरूर ध्यान दिया होगा, अभी भी नहीं दिया तो वापस जाके अभी भी कुछ चेक करवा लें। रैंडम सैंपल चेकिंग बेसिस के ऊपर 5%, 10%, 15%, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी कुछ चेक करा लें, कंसिस्टेंसी को फिर परख लें, चेक करा लें और वापस नीचे तक भेज दें और फिर स्कूल रिपोर्ट कार्ड को फाइनल करके स्कूल में लगवा लें, तो हमारा कुछ भला हो सकता है। इतना हमने मेहनत की, आप सबने इतनी मेहनत की, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन जब तक ये छोटी छोटी जो इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा है, इन सबको ठीक नहीं कर दिया जाए तो ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि हम और ज्यादा प्रोग्रेस और डेटा की क्वालिटी में कर लेंगे। लेकिन ये भी मेरा मानना है, अगर कुछ स्कूल छूट गई है तो घबराने की बात नहीं है। 15 लाख स्कूल का पीटीआर निकाल लो, 15 लाख 150 का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 15 लाख स्कूल का कर लो और 15 लाख 100 स्कूल का कर लो, ये सारे इंडिकेटर तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन आपके लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अगर कुछ स्कूल छूट गई है, गलत डेटा आ गया है, तो बहुत फर्क पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। इसलिए ठोक बजा के 2014-15 में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन सब छूटी हुई स्कूल जो 1 से 12 की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उन तक हम सब पहुंच गए होंगे। आपने डेटा कैप्चर फॉर्मेट को सॉफ्टवेयर से प्रिंट करने से पहले उन सभी छूटे हुए स्कूल की लिस्ट बना ली होगी। जो स्कूल प्रमोट हो गए हैं, अपग्रेड हो गए, उनकी लिस्ट बना ली होगी, क्लोजर स्कूल की लिस्ट बना ली होगी, और स्कूल जो फंक्शन नहीं कर रही है उनकी भी शायद आपने लिस्ट बनाई ली होगी। उसके बाद में डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छापा होगा। फिर भी अगर कुछ स्कूल अभी भी हमारी नजरों में आ जाती है कि छूट गई है, तो प्लेन डेटा कैप्चर फॉर्मेट अभी भी दे सकते हैं। कोई ज्यादा, अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी हम उसको ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों, जब ये सारा कार्य पूरा हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में डेटा सबमिट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में डेटा सबमिट हो जाता है, तो हम सब ये मानते हैं, आप सब मानते हैं कि मेरा काम तो पूरा हो गया। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ईयर 2014-15 इज ओवर। मेरा ये मानना है कि हमारा कार्य अब शुरू होता है। हमारा कार्य डेटा को फ्रीज करते ही खत्म नहीं हो जाता है। हमारा काम तो अब शुरू होता है। जो डेटा की एनालिसिस के कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, रियल वर्क स्टार्ट फ्रॉम नाउ। इसीलिए ये वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है हमारे लिए, अगर सही मायने में इसको देखा जाए। मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि डेटा एनालिसिस एडिक्वेट नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है। हम केवल इस डेटा को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बाकी अन्य लेवल्स के ऊपर है, हमारे डेटा को केवल एनुअल वर्क प्लान एंड बजट बनाने में यूज करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं। डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं। हम तो भैया उन 26 टेबल में आंकड़े भर के, प्लान अप्रूव करवा के,
पीआई में अप्राइज हो जाता है, पैसा भी मिल जाता है। और अगर आप देखें जितना पैसा मिला है उसका 70% से ज्यादा तो हम खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं यार। हमें तो खर्च करना भी पूरा अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। और जो पैसा खर्च भी हो रहा है उसमें 90% किस में खर्च हो रहा है? बाउंड्री वॉल बनाने में, एडिशनल क्लासरूम बनाने में, मरम्मत करने में, माइनर या मेजर मरम्मत करने में, इसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एक भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेरे को ये बता दें, आपने लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कितनी रिसर्च स्टडीज की, एनरोलमेंट को बढ़ाने में क्या किया? क्या रिसर्च स्टडीज हमने ड्रॉप आउट रेट को चेक करने के लिए किया? क्या ट्रांजिशन रेट को बढ़ाने के लिए प्राइमरी टू एलिमेंट्री, एलिमेंट्री टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी कोई रिसर्च स्टडीज करवाई क्या? अगर बच्चे सिस्टम में नहीं आ रहे हैं तो उसके रीजन क्या है? क्या एप्रोप्रिएट रीजन बेस्ड इनिशिएटिव हमने हमारे प्लान में डाला है क्या? सॉरी टू से वी हैव नॉट डन। और इसका रिजल्ट बिल्कुल हमारे सामने है। सर्व शिक्षा अभियान जब हमने शुरू 2001 में किया था, कुछ फैसिलिटी वाइज इंडिकेटर्स तो जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन दोस्तों बाकी इंडिकेटर्स आप देखेंगे अभी भी बहुत कुछ काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये तभी संभव हो सकता है जब थोरो एनालिसिस ऑफ द डेटा हो। इसलिए समय आ गया है अंडरटेक द डायग्नोसिस एक्सरसाइज, थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा, डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस ऑफ द डेटा, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक वाइज, ब्लॉक लेवल पे हो सके तो क्लस्टर वाइज, और सेपरेटली बॉयज एंड गर्ल्स, रूरल अर्बन एरिया, एससी और एसटी अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है तो डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस अगर हम कर लें तो शायद हमें ये पता चल जाए कि हमारे जिले के अंदर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अभी तो भैया आप एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोई भी उठा के देख लो, सारे की सारी प्रॉब्लम्स वही लिस्टेड है। और अब तो लिस्ट भी नहीं करते हैं, अब तो टेबल भरते हैं। अभी थोड़े दिन में आप वहाँ डीएसजी में आके बैठ जाएंगे, 8-10 दिन बैठेंगे वहाँ, सारे 26 टेबल भर देंगे, फिर एनालिसिस होगा, वो होगा, फाइनली अप्रूव भी हो जाएगा। अब समय आ गया है कि एक एकेडमिक फ्लेवर हम यहाँ पे दें। कम से कम हम स्टेट लेवल पे तो कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इस रिगरस एनालिसिस कर सकते हैं। और जब आपकी डायग्नोसिस एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो आपको इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस व्हिच नीड योर लोकेशंस व्हिच आर नॉट एट पार विद द अदर लोकेशंस। पिछड़े हुए कौन कौन से लोकेशंस है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जिनकी वजह से प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए। एक तो ये पता चले, जब ये एनालिसिस कर लेंगे तो आप देखेंगे आसाम में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, दे कैन बी टर्म्ड एज एजुकेशनली एडवांस्ड लोकेशन। और केरल के अंदर भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, दे कैन बी टर्म्ड एज एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज। ये तो तब पता चलेगा जब हम डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस ऑफ द डेटा कर लेंगे। विक्स फॉर्मूला 44 शायद हर समय हमारी मदद नहीं करे। इसलिए सबसे पहले वेयर डू वी स्टैंड, स्टॉप टेकिंग एक्सरसाइज, डायग्नोसिस एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कौन से ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हमारे राज्य और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशनली एडवांस्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये करना। Looking forward your presentation so far as the based on your own data. We believe that many of the states sitting here, 8 states were invited. You have completed 2014-15 data management and organization of unified ties. We are looking forward all of you to submit the data at the state level and then at the national level. Thank you very much, ma'am, and all others for giving me this opportunity. Thank you.